Thank you. Please, others also. It's a request. Ma'am, I'm actually traveling, so I won't be able Okay, to okay. pick If up it the is exceptional problem, then okay. But please. yeah, I'm on my data, ma'am, as of now. Like, Okay, it's only for today. okay. Uh, myself. Hello. Is it audible? Okay. Yes, ma'am. Okay. I'm Dr. Vaichandra Kala, Assistant Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. And in today's session, we are going to discuss about the topic here from the coursework you are having, Environmental Science and Disaster Management, which I'm going to take. Okay. So this is the course which is allotted to me. And I would like to request you to please write down your enrollment number and your name and environmental science and disaster management in the chat box so that I can collect at the end of the session your attendance. Okay. Ma'am, I have not received my enrollment number, ma'am. I even tried to contact the Okay. At least you write down your number, name, and the subject. Okay. Environmental science and disaster management. You can write in short EVS. Okay. All right, ma'am. Thank you. Just take a while only and let me start. Ayushi, Tina, Sapna. Sherry Williams. Okay. Please, parallelly, you can write it down so that and I can collect it out. Okay. So whoever are present in the class. Okay. So environmental science and disaster management. This is the most interesting topic from your coursework. When we say environment, what does it mean actually? Veena, am I audible? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. You are audible. ओके, थैंक यू. सो जब हम इस पेपर का यहाँ कोर्स वर्क में होने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट व्हेन वी से environmental science and disaster management? So in these sessions you will be going to know through what is environment, what are the different aspects on environment, how environment is important, what is the different role of having a good environment, or what are the disasters which we can face in as an after effect of disturbing the nature and the environment, right? आपके पास you can have money. Is it comfortable for you? और कोई हिंदी वाला कैंडिडेट भी है इसके साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है? हाँ जी. Okay, I will try in both the bilingual. Okay. So that it can be easy for you. So when we say environment, why you think it is important for us? What do you call it as environment? When something is surrounding us, okay? Anything which surrounds us, it may be a living and a non-living things. Both can be in your environment, right? For example, let me ask Veena, what are the things which surrounds you in at present? Sapna? Can I, ma'am? Yes, please, Khushbu. Ma'am, ecosystem services, environmental ethics. What I said, listen to the question. I asked Veena, what are the things surrounding you at present? At present, what are the different things? Try to understand the concept. Don't try to go with the text or the textual language, right? I'm trying to teach you beyond the text. जहाँ पे critical analysis या critical thinking को develop करना है, या text के book के साथ stick करके नहीं चलोगे. You have to develop your analytical skill beyond the text. किताब के बाहर सोचना शुरू कर दो. Because as a researcher, you have to develop the skill beyond the text. Right? When I ask you, in a simple way, I just ask you simple things. What are the things surrounds you? Right?
एट प्रेजेंट आप जहां पे भी बैठे हो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी चारों ओर, राइट? उसमें कुछ चीजें लिविंग हो सकती है, कुछ चीजें नॉन लिविंग हो सकती है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में आपके साथ छोटा सा पपी हो सकता है, या फिर छोटे छोटे रैट्स हो सकते हैं घर में, ठीक है, विच इज नॉर्मली विजिबल, ठीक है। एट द सेम टाइम मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लिविंग विथ यू विदाउट योर नॉलेज, ठीक है, जो है प्रेजेंट एयर में है, वाटर में है, आपके सराउंडिंग्स में है, वॉल्स में है, मेनी थिंग्स सराउंड्स यू एज अ इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें आ रही है। उसके साथ साथ आपके पास में नॉन लिविंग थिंग भी सराउंड कर रही है। नॉन लिविंग थिंग्स में फॉर एग्जाम्पल खुशबू, यू आर हैविंग अ बैग, आपके पास में ग्लास है, फर्नेस रखा हुआ है, या आप बेड पे है, टेबल है, लैपटॉप है, कॉपी है, पेन है, जो चीजें हम नॉन लिविंग में काउंट कर रहे हैं। व्हाट आर व्हेन वी से नॉन लिविंग, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, लाइफ एग्जिस्टेंस इज एब्सेंट, राइट, वी कॉल देम एज नॉन लिविंग, ठीक है। जहां पे लाइफ की एग्जिस्टेंस हो रही है उन्हें हम लिविंग में रखते हैं। तो हम प्रेजेंस ऑफ लाइफ या एब्सेंस ऑफ लाइफ कैसे डिसाइड करते हैं? when how you call it something is living or something is non living, ये बताओ कैसे लेते हो आप? खुशबू, Ma'am, could you repeat the question, ma'am? Kindly repeating, what ma'am. is the difference between when you say मैंने बोला कि book है, टेबल है, चेयर है, बगल में पप्पी है, ठीक, यू हम नॉर्मल इन जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इट इज लिविंग एंड इट इज नॉन लिविंग। सो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द थिंग्स बिटवीन बोथ? व्हाट आर द पैरामीटर्स यू डिसाइड कि ये दोनों में, इसमें लाइफ है उसमें नहीं है, कैसे डिसाइड करते हो? Ma'am, the living thing can respond and non-living thing cannot respond. रिस्पॉन्ड, अच्छा, और Movement. Visibility, ma'am. क्या बोल रहे हो शेरिंग? Visibility. Like It's we can not- see, right? What is Existence in living. life, one at a time, please, one at a time. ma'am, existence in life, Existence in life means what? Actually, what you want to means tell? Existence in life means मैम लिविंग थिंग्स आर जो सांस ले सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, जिनके पास फंडामेंटल राइट है। नॉन लिविंग थिंग्स आर, उसके पास फंडामेंटल राइट कैसे हो गए बेटा? ये फंडामेंटल राइट्स कैसे आ गए इसमें? Ma'am, if an organism can able to growth and showing the reproductive phase of his life, then we say that it is showing the living performance. And if doesn't occur that, then it known as a non-living object. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, अगर उसमें Able to रिप्रोडक्शन grow and reproduce themselves, and in the same way that other offsprings are able to do these same things, that is known as a living. थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे अंकित, थोड़ा सा विस्तार में? हाउ कैन यू से इट इज लाइक हैविंग अ डिफरेंशिएशन And लाइक? if an organism is able to growth and Okay. produce their offsprings, हाँ, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर, जब आप बोल सकते हो कि देयर इज that is living thing. हाँ, yeah, definitely. Then reproduction part is there. Then you can say there is a propagation is going on, or the offspring is developing. Then generation to generation, one to second generation is getting into that. Okay, that means one of the parameter you can say reproduction should be there. When if you are keeping a piles of book, is it multiplying? Is it multiplying into 1, 2, 3, 4? No. Yes. होता है क्या? नहीं ना, यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन when you say it is having a life and is a living, that means reproduction is Reproduction is also place. लेकिन हम जो ऑर्गन यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन लिविंग में रख रहे हैं, तो वहां पे नहीं हो रही है, राइट? करेक्ट। सेकेंड इज when you say breathing is there, if you have a or living organism, that means that has a life, उसमें सांस लेने की कैपेसिटी होगी, उसमें ब्रीथिंग हो रहा है, then only you can say life exist कर रहा है। yes or no? लाइफ की एग्जिस्टेंस कैसे बोलोगे बिना?
if breathing process is also occur in an organism, then it's not वेरी गुड, ब्रीथिंग इज देयर, तभी आप बोलोगे कि उसमें लाइफ है. अगर सपोज इफ यू आर टेकिंग योर पेन, नोटबुक, बुक्स, एनीथिंग यू आर टेकिंग, दैट मीन्स दैट डजंट हैव द लाइफ. व्हेन वी सेड इट डजंट हैव द लाइफ, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, वो ब्रीथ नहीं कर सकता, वो ग्रो भी नहीं कर सकता. ठीक है, उसमें लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म्स नहीं हो रहे हैं. एंड व्हेन यू से बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म, उसके जैसे आप व्हेन यू आर टेकिंग द फूड, यू आर अंडरगोइंग, द फूड इज अंडरगोइंग लॉट्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, या जिससे कि आपकी लाइफ एनर्जी मिलती है, या फिर यू गेट इनटू द लाइफ चेंज, जो आपका कंटिन्यूटी हो रहा है. राइट, यस और नो? तो लाइफ की एग्जिस्ट, व्हेन वी से लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये आप छोटे लेवल पे यू यूज दिस टर्मिनोलॉजी एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. बट व्हेन यू कम इन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Ankit, please mute yourself, please. ओके, सो जब हम आके हायर लेवल पे, हायर वर्जन पे जाते हैं, इट विल नॉट स्टैंड विद द सेम. राइट, ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि लिविंग या नॉन लिविंग. इन द हायर वर्जन वी टेल देम एज वी कैन biotic and abiotic. Right, abiotic, biotic means living organism, those organism which have the life. Please on your camera, all of you. Pooja, Shireen, Nisha, बिना कैमरा ऑन के I will not take the class. I want everyone should be in the live state, in the live classroom. All of you. Exceptional only considered if you have certain problem, that too only at that particular moment, not every day. I just want everyone to be in the class in the live active mode. आपके पास कॉपी पेन सब कुछ होने चाहिए. ठीक है, तो when we say बायोटिक और नॉन बायोटिक, जब हम बायोटिक या नॉन बायोटिक बोल रहे हैं, तो बायोटिक इन द सेंस बायो मीन्स लाइफ. ठीक है, तो लाइफ की जहां एग्जिस्टेंस हो रही है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उसे हम रखते हैं बायोटिक एस्पेक्ट के अंदर. तो ये आप हायर वर्जन का ये टर्मिनोलॉजी यू हैव टू यूज, और यू विल बी कमिंग अक्रॉस दिस टर्मिनोलॉजी इन द हायर वर्जन. ठीक है, तो हम यहाँ लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, हम यहाँ बायोटिक या एबायोटिक बोलेंगे. When we say abiotic means those components which have the factors of living factors के absent है. सारी living factors जहाँ पे absent है, उसे हम abiotic बोलेंगे. तो abiotic में कौन कौन से examples आएंगे बीना? अंजलि, मैम एबायोटिक में वही आएंगे जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि पिल्लो हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गए, ये सारे एबायोटिक में आएंगे. और बायोटिक में वही जो लिविंग होंगे वो सभी बायोटिक में आएंगे, जैसे ह्यूमन हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, डॉग, प्रोटोजोआ, मोनेरा, ये सारी फाइलम्स जो होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये सब बायोटिक में आएंगे. ओके, सपना. अंजलि, प्लीज ऑन योर कैमरा. सपना. ओके, विल बी बैक टू यू अगेन. ठीक है, निशा. Yes, ma'am. एबायोटिक और बायोटिक के बीच में एग्जांपल्स बताओ बेटा. आई वॉन्ट एवरीवन टू बी इनसाइड द क्लास, कि आप सिर्फ लैपटॉप ऑन करके या क्लास ऑन करके अगर आउटस्टैंड हो तो आई एम मार्किंग ईच एंड एवरीवन्स परफॉर्मेंस ऑल्सो.
So I want everyone to be in active mode. Suman, मैम बायोटिक में लिविंग थिंग्स आएंगी मैम. क्लैरिफाई एट द सेम मोमेंट ओनली. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो हम उसी मोमेंट में उसे क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपको वो एस्पेक्ट कंप्लीटली, क्योंकि आप बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द प्राइमरी बेसिक थिंग्स. डायरेक्टली मैं हाई लेवल पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप समझ जाओगे तो हायर वर्जन में आपको दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. यस प्लीज सुमन. यस मैम. यस मैम, बायोटिक लिविंग थिंग्स आएंगी मैम. जैसे मेरे पास बेटा है, पप्पी है, ये सारी चीज लिविंग, जैसे मैं खुद हूँ मैम. और ए बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी. जैसे मेरे बुक है, पेन है, मेरे पास फोन है, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स ए बायोटिक में आएंगी मैम. ओके. खुशबू. मैम बायोटिक में लिविंग थिंग्स आएंगे, जैसे ह्यूमन है, मैं खुद हूँ, इंसान है. ठीक है. और नॉन ए बायोटिक में मैम नॉन लिविंग थिंग्स, पिलो, पेन, लैपटॉप, कॉपी, चेयर. ओके. सपना. मैम बायोटिक में जैसे कि जो लिविंग है, जो थिंग्स है, मतलब कि जैसे कि जो चीजें सांस ले सकती है, चल फिर सकती है, घूम सकती है. ओके. तो अभी कोई डाउट नहीं है? जी मैम. ओके. तो आप अपने सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें देखते हो? सपना. You have to answer in a technical mode. कौन कौन सी चीजें आप अपने इन्वायरमेंट में देखते हो? चलो वापस आते हैं आपके पास, हम वापस आएंगे. खुशबू. in a technical mode, ecosystem, human being. I just don't want the laptop answer, please. I want you to analyze the things, please. मैम लिविंग थिंग्स में तो मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने जो भी मेरे आसपास लोग हैं उन्हें देखती हूँ. और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मैम बेड, चेयर, घर और पेन, ये सब चीजें, शॉल, स्वेटर, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. गौतम. मैम बायोटिक है जो लिविंग थिंग्स है, वो बायोटिक है जो ह्यूमन बीइंग्स. और नॉन बायोटिक और एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स जो है, बुक, पेन्स, हाउस. ओके. मोनिका. वो लिविंग थिंग में आ जाता है. ओके. सुमन. यस मैम, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर सराउंडिंग. लिविंग थिंग्स जैसे मैं खुद एग्जाम्पल हूँ मैडम. और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी मेरे पास बुक, पेन, टेबलेट, ये जितनी रखी है सारी नॉन लिविंग थिंग्स. आपने एक चीज मार्क किया, सबके आंसर में कुछ चीजें कॉमन थी. आपने अगर मार्क किया होगा तो आपने कितने आंसर सर्टेन थिंग्स कॉमन बता सकते हो क्या? कुछ चीजें कॉमन थी. सुषमा. मैम बुक, पेन, टेबल, ह्यूमन, ये कॉमन एग्जांपल्स दिए थे. ओके. कॉमन एग्जांपल्स थे. Coming to the point, when we say environment, that means something or the things which surrounds us. ठीक है, जो चीजें हमारे चारों ओर प्रेजेंट है हम उसे environment बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर इनसाइड अ रूम. ठीक है, तो आपने अपना एग्जाम्पल क्या दिया? अपने रूम के सराउंडिंग में जो भी चीजें आपके प्रेजेंट है, दैट मीन्स टेबल, पेन, बेंच हो सकता है, पपीज हो सकती है. तो आपकी एरिया और एरिना क्या रही? लिमिटेड. राइट, एक लिमिटेड एरिना रहा. तो आपने अपने रूम के एनवायरनमेंट में डिस्कस किया व्हाट आर द थिंग्स दैट सराउंड्स यू. एट द सेम वे व्हेन इट कम्स आउट इन द ग्लोबल वे, ग्लोब पे हम जब डिस्कस करते हैं, ठीक है,
ये आपका एक रूम का एनवायरनमेंट था विच सराउंड्स यू इनसाइड अ रूम. बट व्हेन इट कम्स टू द ग्लोब और द ग्लोबल लेवल, ठीक है, जब हम ग्लोबल लेवल पे डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट को, क्या क्या चीजें होंगी फिर वहाँ जब ये पूरे ग्लोबल पे होगी तो? मैम पेड़ पौधे होंगे. यस, वेरी गुड. और जो एनिमल्स हैं जो भी हमारे आसपास बाहर रहते हैं. और नॉन लिविंग थिंग में जैसे दीवारें हो गई या फ्लैट हो गए या कोई भी मैकेनिक गाड़ी वगैरह हो गई, कार हो गई. ओके. Ma'am, different people with different age groups, different genders. Okay, very good. Very good. Different people, different age group. Yes, then. Momita. मैम वाटर सॉइल ये भी एबायोटिक में ही आते हैं सब एबायोटिक में आता है. तो हमारे सराउंडिंग में है वाटर सॉइल लैंड, ये सब भी जो हमारे सराउंडिंग में ये भी सारे एबायोटिक ही होते हैं. Okay, Gautam. Gautam, who is text? Shushma. Anjali. 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 Yes, ma'am. What are the things which you see in the global level in the environment? In the Environment. environment. मैम आपका क्वेश्चन एक बार प्लीज रिपीट करूंगी. Will be back to you. ठीक है, सुन लो. पूजा यादव. Okay. So actively, I will just take the name. If someone is missing, just tell me. Shereen, Anjali, Khushbu, Ayushi, Monica, Momita, Shushma, Anjali, Monica, Pooja Yadav, Kiran. Ma'am, Sarah. Shera. Okay, Shera. Shera Williams. Nisha. Nisha, you have not. Please type your enrollment number in the chat box. Sorry, name and enrollment number and subject. So, जब हम ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं, then it is your table, bench, books. But when you coming to the global level, ठीक है, तो try to understand the concept, क्योंकि आपको हर बार मैं नहीं डीप में जाके समझाऊंगी. Then we will take the technical term from it. तो जब हम ग्लोबल में जा रहे हैं, तो ग्लोबल में आप क्या देखते हो? पेड़ है, पौधे हैं. निशा, please mute yourself. ठीक है. निशा, you want to say something? ओके. सो जब ग्लोबल लेवल पे हम देखेंगे तो आपको आके फॉरेस्ट मिल रहे हैं, डेजर्ट मिलेंगे, राइट. सी है, मेरे अगर समुद्र की तरफ जा रहे हो तो कोस्टल बेल्ट पे जा रहे हो तो आपको सी मिलेगा, ठीक है. आप अगर राजस्थान या फिर जैसलमेर के साइड जा रहे हो, यू आर गेटिंग इनटू द डेजर्ट पार्ट, राइट. तो कहीं पे आके लेक्स होंगे, कहीं पे आके आपके सी है, तो कहीं पे पॉन्ड है, right? Different aspects and different things you are seeing in your environment, right? कुछ buildings भी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, animals हैं, तो you are getting an environment where things are also there, non-living things are there. Living में आपको जो visible है बहुत बड़े हैं. Please mute yourself unless until if you have to speak, please raise your hand. That's all. Okay? So बहुत सारी चीजें आपको पर्यावरण में देखने को मिलती है जब आप बाहर मूव करते हो इन अ एनवायरनमेंट. क्या आप जो चीजें आप देख रहे हो अपने एनवायरनमेंट में, क्या ये सस्टेन जरूरी हो सकता
सपना प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये क्या जरूरी है आपको? अगर हम सपोज सोचे हवा को हटा देते हैं, पानी को हटा देते हैं, तो क्या होगा? नॉट पॉसिबल मैम। क्यों भाई? Everyone is here when we are only focused about earning for our life. Everyone is running after money. तो क्यों जरूरी है? मैम दिस इज लिविंग थिंग्स। सो जीवन जीने के लिए तो मैम ये जरूरी है। जीवन जीने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हटा दो भाई, कैसे भी जाए, हवा कैसा भी हो, पानी कैसा भी हो, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट दैट, है ना? Everyone wants to go out with a car. Yes or no? Yes ma'am. मैम कार तो चाहिए। यस मैम। हाँ, तो कार तो चाहिए, बाहर जाना नहीं है, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एसी चाहिए, हर सब चीज चाहिए। एंड फॉर दैट एवरीवन इज रनिंग आफ्टर द मनी, एवरीवन इज परचेजिंग न्यू थिंग्स की पड़ोसी समवन हैज परचेज समथिंग, तो मुझे भी वो गैजेट खरीदना है क्योंकि that is the royal status. So this is the actually cause जहां पे हम financial के साथ में we are many things, but we are forgetting at the same time कि हम जो चीज खरीद रहे हैं, जैसे खुशबू ने बोला लाइफ के लिए तो आज फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि आपके रूम को मैंने वैक्यूम कर दिया है, यहाँ बिल्कुल एयर में ऑक्सीजन नहीं है, यू हैव नाइट्रोजन, यू हैव अदर गैसेस, you have lots of carbon dioxide, but oxygen is not there, then what you will try to do? हम लिविंग थिंग में नहीं आएंगे, है ना? और उस केस में people will start buying oxygen as that of the LPG gas also, right? But so interestingly, nature में सब चीजें फ्री में अवेलेबल है, ठीक है? और हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, right? We don't value them because it is present in the nature. Due to the course of time, it has been destructed to a certain level कि आज आपको ऑक्सीजन की सिलेंडर भी जरूरत पड़ रही है, right? Which is at the most expense. If you are a millionaire also, for a person, it is not possible to buy even 3 to 4 liter of oxygen per day. If you are a millionaire also. लेकिन एक छोटा सा पौधा अगर आप अपने घर पे लगाते हो तो it gives the replacement of that. That means you have $1 million property around you. Got the point? लेकिन we disrespect it. Neither we are concerned for the nature. ठीक है? हम उसे खराब कर रहे हैं. Yes or no? How many of you go take car in the morning? क्योंकि पैसा मेरा, गाड़ी मेरी, right? This is the general Indian concept we have. Because we are least bother about the nature or the nature concerned. Same चीज जब आप रिसर्च में काम भी कर रहे हो, when you are having a scientific things, हम scientific चीजों को हैंडल करते वक्त सेफ्टी लेवल भूल जाते हैं, बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल भूल जाते हैं और उसे डिस्कार्ड करते हैं into the environment. So which as a result what will happen? जब आप नेचर में डिस्कार्ड कर रहे हो तो क्या होगा रिजल्टेंट? क्या इफेक्ट पड़ेगा वीना? What are the effects it can cause? कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं. खुशबू? मैम बैड हेल्थ और बैड हेल्थ. ओके. सो हम अपने सराउंडिंग में
जो डेवलप कर रहे हैं, इवन द थिंग्स के डिग्रेड, फाउल स्मेल्स आ रही हैं, उसमें से हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस आती हैं, राइट। सो आप जब कोई भी माइक्रोबियल कल्चर ले रहे हो, उसे आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसे जब आप डिस्कार्ड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग अ टीबी पे काम कर रहे हो, उस ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया पे काम कर रहे हो, आपने बैक्टीरिया लिया, आपने उसे स्टेराइल नहीं किया, आपने उसे थ्रो कर दिया, right? When you throw it out, what happens? These bacteria get into the environment, क्योंकि उस एरिया के एयर में वो बैक्टीरिया आ गया, right? उसके बाद आपने जब सांस ली तो धीरे धीरे वो आपके इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गया। मे बी यू आर फार अवे फ्रॉम दैट प्रेमिसेस वेयर यू आर थ्रोइंग दैट डिस्कार्ड, राइट? बहुत दूर है वो, लेकिन जहां पे वो स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स उस पे घूमते हैं, they move, they take that from one place to other, वो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मक्खी वहां बैठती है, वहां से आपके घर तक तो आ सकती है, उसके लिए तो कोई बैरियर नहीं है ना, उसके लिए तो कोई बैरियर नहीं है, वो तो उड़ के आराम से आ सकती है आपके यहाँ पे, आपके बालकनी में आ सकती है, राइट। थर्ड, फॉर एग्जाम्पल वहां पे बर्ड्स हैं, राइट, बर्ड्स गए वहां पे बैठा, आपके बालकनी में आए, आपने कपड़े वॉश करके प्रॉपरली यू हैव पुट इट एंड दे कम एंड दे सिट ऑन दैट। आपने खाने के लिए कुछ रखा है, यू पुट, यू टेक योर हैंड्स होल्ड और समथिंग, अदर चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो चीजें हम डिस्कार्ड करते हैं, वी आर मेकिंग अ चेन ऑफ थिंग्स, राइट? समझ में आ रहा है? हम एक चेन बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने किचन से डिस्कार्ड किया, हमने अपने रिसर्च लैब से डिस्कार्ड किया, और डिस्कार्ड को हमने प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया। नंबर वन, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिस्कार्डिंग एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आप काम कर रहे हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या कोई वायरस पे काम कर रहे हो, या फिर कोई फंजाई पे काम कर रहे हो, देन यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आपने जो कल्चर प्रोड्यूस किया है, कोई म्यूटेंट प्रोड्यूस किया है, तो वो म्यूटेंट आके प्रॉपरली डिस्कार्ड होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड बायोसेफ्टी लेवल। आप 1 2 3 4 किस लेवल का ऑर्गेनिज्म है एंड व्हाट इज द बायोसेफ्टी लेवल यू आर अडॉप्टिंग। तो अगर आप बायोसेफ्टी लेवल अडॉप्ट नहीं करते हो और उसे डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देते हो नेचर में, देन इट गिव्स द इम्पैक्ट, क्योंकि आपने सोचा कि आपने ड्रेन में उसे डिस्कार्ड किया है, राइट, या ड्रेन में डाल दिया या डस्टबिन में डाल दिया, बट इट विल गो टू द एरिया और द कवरेज एरिया ऑफ 1 2 3 मीटर्स और 1 or 2 3 किलोमीटर्स ओनली फॉर द डिस्पोजल पार्ट। तो वहां से वो उस एरिया में मे नॉट बी इन 1 day, बट इट विल टेक 10 to 15 days टू रिप्लिकेट, मल्टीप्लाइंग। उसे इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो वो भी ग्रो करेगा, और वो ग्रो जब करेगा तो वो उस जगह से जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वाया एयर, और इफ someone is going in contact with that, unknowingly and unknowingly a second person may be infected with that particular living organism, ठीक है। तो it has to be taken care, जो हम ही स्प्रेड करते रहते हैं, कहीं ना कहीं we are spreading the things into the system, ठीक है। दूसरा है व्हेन वी से बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, तो ये जो चेन है, सपोज मैंने जैसे बोला कि इफ यू टेक आउट द एयर पार्ट, ठीक है, तो खुशबू का बोलना है कि वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट। और अगर आप वाटर पार्ट को हटा रहे हो तो यू कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए। तो मेनली हमारा जो ये पेपर है फोकस ही इस बात के लिए कर रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचर एंड हाउ एक्चुअली नेचर एंड इट हैज इफेक्ट्स, इम्पैक्ट्स ऑन द डिजास्टर कैसे हो रहा है, या फिर उस चीज को इन अ ब्रॉड स्केल प्रिवेंशन मोड में इट हैज टू गो। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कंपल्सरी कोर्स किया गया है, जिससे कि टेक्स्ट पार्ट में ना रह के आप उसे रियल लाइफ सिचुएशन के साथ को रिलेट करके आप अंडरस्टैंडिंग पे आए कि हाउ। यस पूजा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। पूजा, यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, सो इन्वायरमेंट में हम कैसे आके अपने इन्वायरमेंट को नेक्स्ट 2050 तक बर्बाद होने से बचा लें। Otherwise, if you are going at the same page, then it may be very difficult to the coming generation to have a
सिलेंडर फ्री ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे जब हम बायोटिक और एबायोटिक बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपके हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्तर आपने देखे होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट थिंग आपने देखा होगा कि खुशबू ने आज क्या क्या खाया? ब्रेकफास्ट मैम। हाँ, ब्रेकफास्ट। व्हाट यू हैड एक्चुअली? एक्चुअली मैम पराठा, दूध, मिल्क। अच्छा, ओके। तो आपने लिया जो फूड, उसमें से कोई भी फूड ऐसा था, जैसे हमने पराठा लिया, आपने दूध लिया, ठीक है? तो दूध तो आपने गाय हो या फिर भैंस या फिर समथिंग, ठीक है? आपने जो पराठा लिया, दैट मीन्स दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द व्हीट, ठीक है? ठीक है। तो डायरेक्टली यू आर नॉट टेकिंग द फूड, ठीक है? हम डायरेक्टली फूड नहीं ले रहे हैं। तो अब जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो कौन है? सबसे पहला आपने जो 2 एलिमेंट बोले उसमें से फूड खुद कौन प्रिपेयर कर रहा है? बताओ। बाय एयर। एयर मैम। नहीं, Wheat plant, ma'am. Producers, ma'am. प्रोड्यूसर्स, ओके। नो, लेट मी कम, ओके, सुजैन और लेट मी, क्योंकि जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैं आंसर उनसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उनकी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए और वो थोड़ा एनालाइज करे चीजों को, ठीक है? वीना, आयुषी, मैम कितने बजे है मैम आपका? वीना मैम कितने बजे है? कितने बजे? हाँ, 12:25 के। हाँ, तो बताओ बेटा, सोचो थोड़ा। आपने खुशबू, काइंडली रिपीटिंग प्लीज। हाँ प्लीज, ओके। खुशबू ने बोला कि पराठा एंड मिल्क, ठीक है? तो ये दीज टू के प्रोड्यूसर कौन है एक्चुअली? सबसे पहले ये जो हमने बोला ये व्हीट से बनी है, तो व्हीट जो है वो कहाँ से आई? ओके, पूजा यादव ने लिखा कि काउ, मोनिका ने लिखा प्रोड्यूस हो रहा है मैम, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो लिविंग थिंग्स के थ्रू हो रहा है, आई थिंक। ओके, लिविंग Ma'am, थिंग्स। wheat plant is the primary producer. नहीं, सुषमा रुक जाओ बेटा, थोड़े Wheat produce on tree, मतलब wheat produce on tree. Tree is a living thing, right मैम? ट्री नहीं है, हम वीट को ट्री में नहीं कंसिडर करेंगे। ट्री हम उसको बोलेंगे जैसे आम का हो गया, तो उससे हम ट्री में बोलेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक द योर बेसिक फंडामेंटल क्लियर, ओके? हम उसे ट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है? वो प्लांट्स में आ जाते हैं, ठीक है? प्लांट्स में आते हैं, क्योंकि वी विल नॉट से ट्री। ट्री हम उसको बोलेंगे जैसे नारियल का हो गया, आम का हो गया, जो एनुअल प्लांट्स को, जो पेरिनियल होते हैं, वो सालों साल फल देते हैं, में आते हैं, राइट? ठीक है? जो आके 3 मंथ के हार्वेस्ट क्रॉप्स होते हैं, ठीक है? वी आर सेइंग क्रॉप्स व्हेन वी से इन अ मास प्रोडक्शन में हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, वी से टेल देम कंसिडर इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है? जैसे कि व्हीट का क्रॉप हो गया तो वो मास में हो गई, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इन अरे जब हम लगाते हैं विदाउट इंटरप्रेटिंग, बीच में कोई नहीं दूसरा प्लांट्स नहीं रहते हैं, तो वी कैन कंसिडर देम अंडर क्रॉप्स। तो यहाँ पे जब हम प्लांट्स ले रहे हैं या ट्री ले रहे हैं, ठीक है, वो एनीवे, तो बोथ द थिंग्स में यहाँ पे वो क्या है, उनको कोई खाना बना के खिलाता है? अब खुशबू की मम्मी ने खाना बना के खिलाया, लेकिन प्लांट्स को कोई खाना बना के खिलाता है क्या? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। पूजा प्लीज। पानी देते। पूजा, you have raised your hand. Ayushi, Gautam,
जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज राइट डाउन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. निशा, ओके. किसी ने लिखा सनलाइट, किसी ने लिखा सनलाइट बाय विच प्लांट प्रोड्यूस इट्स फूड. ठीक है. तो मेनली प्लांट्स जो है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड जिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है. तो यहाँ पे प्लांट्स जो है हम उसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में रखते हैं. व्हेन वी से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन द टेक्निकल टर्म्स व्हिच आई एम यूजिंग इट. ठीक है. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ठीक है. तो वो वहां पे हम उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि मैं बेसिक्स पहले समझा दूंगी, उसके बाद मैं सिर्फ डायरेक्टली आई विल एड इट वेयर एवर दिस टर्म्स कम आउट. तो फिर मैं हर बार नहीं बोलूंगी उसे, तो आपको पहले बेसिक सारे समझ जाओ. ठीक है. तो हम उसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, जो कि फर्स्ट स्ट्रेटा में हम रखते हैं, जो सबसे पहले आपका खाना खुद बनाता है. मैंने सबसे पहले क्यों बोला? क्योंकि आपने सेकेंड एग्जाम्पल बोला था मिल्क. मिल्क में आपका काऊ से आ रहा है, लेकिन क्या काऊ अपना फूड खुद बनाता है? क्यों खुशबू? खुद बनाते हैं? नो मैम. नो मैम. फिर एनवायरमेंट से आ रहा है. नहीं, फूड तो एनवायरमेंट से आ रहा है. ठीक है, सोच लो. गौतम? प्लांट. हाँ, वेरी गुड. तो यहाँ पे काऊ जो किस पे डिपेंड हो रहा है खाना खाने के लिए? प्लांट्स पे. हम भी किस पे डिपेंड हो रहे हैं? प्लांट्स पे. तो लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है, हमने दोनों ले लिया, प्लांट्स पे भी ले लिया और एनिमल पे भी ले लिया. ठीक है. तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए. ये वाला याद रखना, मैं इसे आगे आगे क्वेश्चंस में पूछूंगी. तो जब हमारे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सबके पास ऑप्शन जो है वो कॉमन ऑप्शन है, दैट इज द प्लांट. तो फर्स्ट हमारा जो सेल्फ आपकी जो फूड प्रोडक्शन होती है, सेल्फ फूड प्रिपरेशन होती है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन अ स्ट्रेटा, तो उसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं. राइट. ठीक है. तो हम उसे फर्स्ट लेवल में रखते हैं, दैट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर. अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो जैसे इसने बोला कि मिल्क वो भी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम काऊ को लेंगे तो काऊ किस स्ट्रेटा पे आ गया? सेकेंड. क्योंकि यहाँ पे काऊ कहां से ले रहा है फूड? प्लांट से मैम. प्लांट से. ठीक है. तो ये प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर. ठीक है. फर्स्ट प्रोड्यूसर हो गया, सेकेंड आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया. तो काऊ को हम यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर भी मान सकते हैं? नहीं मान सकते. क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो कंज्यूमर में आ जाएगा. क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं. किसको कंज्यूम कर रहे हैं? प्लांट को खा रहे हो, तो आप कंज्यूमर बन गए. किसके? पेड़ पौधों के. तो फर्स्ट तो गाय किसको खा रहा है? यहाँ पे गाय जो है वो घास खा रहा है. तो घास हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जो भी हो गया, ये प्रोड्यूसर है. तो इसे हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखेंगे, जो बेसिक स्ट्रेटा होता है किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का. ठीक है. बेसिक स्ट्रेटा है. उसके बाद उसे जो फीड कर रहा है, दैट इज वी कॉल देम एज द प्राइमरी कंज्यूमर. सबसे पहला कंज्यूमर कौन है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल आपने जो बोला कि काऊ. ठीक है. या गोट हो गए, या फिर अगर हम एक ही को लेके चलेंगे, बहुत सारा हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी. ठीक है. तो वो उसे फीड कर रहा है, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस?
ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। अब प्राइमरी कंज्यूमर को भी कोई ना कोई तो खाएगा। अगर हम दो लेके चलते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में हम ले रहे हैं गोट ले रहे हैं, काऊ ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को भी तो कोई ना कोई खाएगा। अब बताओ, आयुषी, बताओ बेटा। सेकेंडरी कंज्यूमर, वेरी गुड। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन है बेटा? किसको लोगे सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, वेरी गुड। एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन। क्यों? वेट वेट वेट, आयुष क्यों बोला उसने? खुशबू ने ऐसे कि एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्मॉल बिट्स, ओके। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही है। ओके मैम, हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही हो सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होगा अगर टाइगर गोट को खाए तो टाइगर सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। ओके ओके, लेट एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। सुमन? यस मैम। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? हमने बोला प्रोड्यूसर जो है अगर ग्रास हो रही है तो उसे अगर फेड कर रहा है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर काउ हो गया, ठीक है। yes, तो काउ को कौन फेड करे? तो खा सकता है। लोइन है मैम, वो जैसे गोट को खा सकता है। यस मैम। ह्यूमन बीइंग भी है मैम, जैसे कार्निवोरस भी है वो। तो जो उसको खा सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल हो गया। प्राइमरी ट्रॉपिकल लेवल, प्राइमरी के ऊपर आपका सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल हो गया, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टर्शरी, ठीक है। फर्स्ट जो है प्राइमरी में है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर है, देन टर्शरी कंज्यूमर है। अगर ये चेन बहुत ज्यादा बढ़ के जाती है, जब हम किसी भी चीज को स्ट्रेट लाइन में डिफाइन करते हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन में, फॉर एग्जाम्पल ग्रास, देन इट कम्स विद द cow, then it comes with the tiger, then it is a straight line, then we say it is a food chain. Got the point? तो ये जो अगर स्ट्रेट लाइन में हम जब डिफाइन करेंगे तो इसे हम फूड चेन में लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ग्रास भी लिया, ग्रास के साथ हमने दो ऑप्शन बोले, वन वॉज योर गोट, वन वॉज योर काउ, ठीक है। और अगर हम इसके साथ और एक दो ऑप्शन ले रहे हैं, ग्रास के साथ में अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे चिकन, ठीक है, या फ्रॉग ले रहे हैं, ठीक है। हमने ग्रास भी ले लिया, फ्रॉग भी ले लिया। सब अपने उसमें कॉपी में बनाओ, तो सब अपने अपने कॉपी में बनाओ। फर्स्ट वाली चेन जो है, फर्स्ट चेन, ठीक है। Okay, it's almost time is over, so I would like to give you some home task. Okay, in the next session, next class में जब मैं आऊंगी तो I would like to see the note. हर किसी के कॉपी में बना होना चाहिए। टेकिंग 2 और 3 प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और 2 और 3 प्राइमरी प्रोड्यूसर से आप डिफरेंट फूड चेन कैसे बनाते हो, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट इकोसिस्टम यू सी इन एंड अराउंड? डेजर्ट है या फिर आपके अराउंड में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यू सी इन अराउंड?
ठीक है, these are the 2 questions I would like to see in the next session, ठीक है, without fail. Okay. You have to be in the class because next you will be having, I think you are having cyber security class, I think. No, WRL class is there, okay? So Professor Veena Diwan will take your class. Right now I am signing off. Thank you, beta. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ मैं आधा घंटे बाद क्या अटेंडेंस भी लेनी है? मैंने तो ले लिया। बस अटेंडेंस तो चाहिए। आपकी क्लास में जो प्रेजेंट है आप उनको बोल दीजिए ना, वो चैट बॉक्स में गैलरी लाइन में है। आप मुझे दो, मैं ऊपर आपको देती चल रहा हूँ। कहाँ बैठे हो? मैं तो उस तरफ जाऊंगी, मैं मेरी है मेरे पास अभी। अरे यार वो कहाँ चली गई? मैडम ये तो सुबह वो गई ना, मैंने उससे कहा था।